Good morning, friends. My name is Saumitra Singha. Since 1st of March, I am attending commando training along with all of you from BSR. This is absolutely amazing experience. It has brought few disciplines and rituals in my life. I have started getting up in the morning 4:45 a.m. and get connected. I have written my goals and continuously channelizing my positive energies to achieve those goals in specified time. I have learned that we need to remain positive in any situations in life, and I am trying to implement that in my life. One of my goal is to complete my first book by next 6 months of time, and in next 85 days, I'll try to complete 15 chapters of this book. I have learned few mantras such as no mercy on yourself and other important aspects to be successful. There are three aspects we need to adhere to: Adat, Sangat, and Guru. That is precisely habit, associations, and mentor. Thanks to BSR. And I sincerely want to thank BSR to give me such an amazing opportunity to learn. I genuinely want to thank you all for allowing me to be associated with you all. And I wish that all of us achieve their respective goals fully. So finally, Tathastu, 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 and thank you, thank you, thank you. Have a great day. Good evening, everyone. Myself, Shruti Hariharan. I am Sugandha ma'am's daughter and I am presently in class 12th. I would like to share all the small changes that I have experienced due to this commando training. First of all, I would like to tell all of you that I don't attend commando really regularly because of my schools and my late night studies. I can't get up in the morning at 5 o'clock and attend commando training regularly. When I get up in the morning early, I sit with my mom and attend it. And also, while I get ready for the school, I keep on listening the things that sir say and try to implement it. One of my changes that I have experienced is that I try to be positive in no matter what situations I face. Me and my family try to be positive for maximum hours of the day. Whatever happens around us, we try to find out reasons or signs from the universe that we have, that we can find out and bring positivity in our lives. Also, there is one more thing. I used to be a person who wants to listen song most of the time. Even in the morning, no matter what the time it is, I used to listen to songs and bring up my mood and my energy. But with the commando training and with sirs and my mom's teachings, I have realized that if you start your day with blessings and with gratitude, your day becomes more positive and more active. And because of this teaching, I have started listening to Mangal Maitri every morning, and I realized that I have been active throughout the day and also positive. There's one more biggest sharing of my life. My brother attended the public speaking session held in Indore. I was supposed to give my speech on the topic gratitude in my school speaking test. I prepared it in just half an hour, and while I was practicing it at my home, my brother said me to bring some changes that sir taught him while attending the seminar. Next day, I gave my speaking test, and my class was just impressed with it. No, not a single child was avoiding attention from my topic, and everyone was listening. Among the 41 students of my class, I was the only student in whose talk this was possible. I scored 20 on 20 in my speaking assessment, and my sir was so impressed with it that he told me to write down my topic and give it for the school magazine. Even my principal sir liked what I spoke on it. So these are the small changes that I have experienced from my short attendance in commando training. I wonder what all might happen when I started attending regularly.
all these changes in me and my family are just because of BSR sir. And also the another reason is my mom, because she is the medium through which I and my brother have met him. So thanks to my mom and thanks to BSR sir for all these teachings. Thank you so much. And here is your host, India's #1 breakthrough strategist, Mr. Bhupendra Singh Rathore, who is also known as BSR. He is an international motivational speaker, best-selling author, CEO coach, leadership expert, and a corporate trainer. He is India's first ever motivational speaker who got to speak at the United Nations at New York City headquarters. He has spoken at Josh Talk and TEDx multiple times. So far, he has addressed and transformed more than 1 million lives through his live and online events. He was awarded Asia's Greatest Emerging Leader in 2017 by Asia One magazine, the 2018 Business Mentor of the Year Award by Entrepreneur India, and the 2019 Most Admirable Global Indian Award by Passion Vista. He has been covered by Entrepreneur India, Forbes India, Founder India, Yahoo News, and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. Good evening, everyone. How are you? Team, can you please tell me on the chat window whether I'm audible? How are you doing, everyone? आज 20वां दिन है. आज 20वां दिन नहीं, I think it is 21st day, sorry for that. आज 21वां दिन है दोस्तों. इस महाकुंभ का 21वां दिन है. एक ऐसी जर्नी जो कि सबसे पावरफुल जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो कि सबसे शानदार जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो कि स्ट्रेस फ्री होने की जर्नी है. The journey of 1000 miles begins with a single step. ये कहा जाता है, the journey of the 1000 miles begins with a single step. एक सिंगल स्टेप से 1000 कदमों की जर्नी शुरू हो जाती है. और आज आप लोगों ने ये सिंगल स्टेप लिया है अपनी जिंदगी को बदलने का. ये पहले 20 दिन आप लोग आए एंड आपने अपनी जिंदगी बदलने का स्टेप लिया. हाउ यू फीलिंग? चैट विंडो में नीचे लिख के बताएं हाउ यू फीलिंग. और आज के दिन की शुरुआत आइए करते हैं बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन से, बहुत ही पावरफुल एनर्जी से. आर यू रेडी एवरीवन? इफ यू आर रेडी, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, and let's celebrate. Thank you. All the commandos and everybody who are live with me, you also can join me. I want you to put your video on and let's celebrate to the highest level. Come on, let's go. All broken hearted. Couldn't find a day I didn't feel low. I never meant to cry. Started losing hope. But somehow, baby, you saved me. You're an angel. Tell me you're never leaving. 'Cause you're the first thing I know I can't believe in. You're holy, 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 holy. I'm high on loving you. High on loving you. You're holy, 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 holy. I'm high on loving you. High on loving you. You need the brightest days from the darkest nights. You're the riverbank where I was baptized. Plans from the demons, feeling the freedom.
gonna give it to ya. Get you singing, babe. Hallelujah. We'll be touching hands under an angel. Tell me you're never leaving. So the first thing I know I can believe in. You're holy, 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 holy. I'm high, I'm loving you. High, I'm loving you. You're holy, 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 holy. I'm high, I'm loving you. High, I'm loving you. Don't need these stars, 'cause you shine for me. Shine for me. Like fire in my veins, you're my ecstasy. You're my ecstasy. You're holy, 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 holy. I'm high, I'm loving you. High, I'm loving you. Come on, celebrate everybody for next 1 minute. One more time with the loudest round of applause and celebrate. Enjoy. So little faith, don't doubt it, don't doubt it. Breathe in my veins, I know it, and never let it push me. I'll fight it, I'll fight it, and the fire's at my heart. Are you ready? Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much. जैसे जैसे ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इसके समापन की तरफ पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे एक नई शुरुआत होती जाएगी और ज्यादा जोश के साथ। कैसा लगा आप सभी को हमारे कमांडोज से मिलके? कैसा लगा आप सभी को हमारे वॉलंटियर से मिलके? यस, सभी को एक एक करके ला सकते हैं, लेकिन यस, समय थोड़ा सा कम है एंड आई नो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों 21वां दिन है, आप में से हर एक इंसान इसे एंजॉय कर रहा है, कंटिन्यूअस उत्सव मना रहा है। 21 दिन से पहली बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि सीखने को भी आपने उत्सव बना दिया है। सैल्यूट टू यू, गिव बैक, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, जो आप कर रहे हो अपने आप को बदलने के लिए, ये शुरुआत है, अभी तो चलना सीखा है।
अभी तो चलना सीखा है, मतलब अब धीरे 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 बहुत दूरी नापनी है, अभी तो बहुत ऊंचाई करनी है। ये समझिएगा मत कि पूरी जिंदगी अभी तक बदल चुकी है, लेकिन हाँ काफी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि 21 दिन आपका माइंड अगर दूसरी दिशा में सोचने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी आदत बन जाती है। लोग कहते हैं 21 दिन में किसी भी चीज को किया तो वो आपकी आदत बन सकती है। 21 days, okay, 21 days are taken to create anything your habit. 21 दिन लगता है। एंड ये 21 दिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ बिताया, आई एम टेलिंग यू, आप में से कईयों की आदत बन चुकी है हाउ वंडरफुल कहने की, आप में से कईयों की आदत बन चुकी है पॉजिटिव रहने की, आप में से कई लोगों की आदत बन चुकी है अपने आप को सेलिब्रेट करवाने की। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, अगर ये आदत बन गई है तो इसको कंटिन्यू रखिए। कल एक सवाल आया कि सर आपकी इस वर्कशॉप से सीख तो लिया कि जिंदगी को कैसे जीना है, थ्योरेटिकली सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करूं? अरे यही प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल है। जब मन करे सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल, ओके? यही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकलिटी के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाउ वंडरफुल, जब भी मुसीबत आए हाउ वंडरफुल बोल दो, यही प्रैक्टिकल है। जब भी लगे कि यार किसी ने बहुत हर्ट किया, फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर लो, वही प्रैक्टिकल है। जब भी लगे कि यार नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में, ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर लो, यही प्रैक्टिकल है। अरे और कौन सा प्रैक्टिकल ढूंढ रहे हो? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, इट्स अ सिंपल थिंग, ओके? What is the practical? Look at this. This is practical. This is practical. All right. This is practical. एक छोटा सा बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। घर वाले अपने बच्चों के साथ अब पॉजिटिव एनर्जी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। This is practical. Am I right or wrong? Do you see what is practical? प्रैक्टिकल बनने के लिए ऐसा कुछ है ना, अलग से आसमान से एक लाइट आएगी, आपके सर के अंदर जाएगी, आपके इधर लाइट जलेगी और उसके बाद आप कहोगे हाँ अब मुझे समझ में आ गया। दोस्त, जो मैं समझा रहा हूँ वही सिंपल है और उनको सिंपल सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करने लगो। गोल सेटिंग के लिए आपको बताया पीले पेपर पे लिखो, इस तरह से लिखो, वो प्रैक्टिकल है। और क्या कर रहा है? ओके सर, पॉजिटिव रहने के लिए थ्योरी सीख ली। अरे मैं थ्योरी सिखा ही नहीं रहा हूं, आपने थ्योरी सीखी कहां से? ओके, थ्योरी सिखा ही नहीं रहा हूं मैं। तो कहते हैं नहीं नहीं सर थ्योरी सीखी ना, कल आपने बताया फ्रस्ट्रेशन को डील करना सीखो। ओके, फ्रस्ट्रेशन को डील करना कैसे सीखना है? ऐसे ही, राइट? बी सेलिब्रेटिव ऑल द टाइम, हर क्षण सेलिब्रेट करो, हर क्षण एंजॉय करो, हर क्षण अपने आप को एक हाई एनर्जी में रखो, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू। जैसे ही फ्रस्ट्रेशन आती है, आधा घंटा सोच लो नेगेटिव, 1 घंटा सोच लो और अपने आप से फिर पूछो अबे कितनी और देर सोचेगा नेगेटिव, इससे क्या होने वाला है? चल उठ, उठ खड़ा हो, लेट्स फेस द वर्ल्ड विद पॉजिटिविटी, एंड यही पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। एम आई राइट रॉन्ग? कोई ज्यादा करने के लिए दिमाग मत लगाओ, बस मेरे साथ जुड़ो रहो। 3 चीजें अगर आपके साथ रही तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलती रहेगी। एंड पहली चीज है उसमें से संगत, दूसरी चीज है आदत, तीसरी चीज है गुरु, राइट? एंड यू नो व्हाट, ये तीनों चीजें मिलके बनाती है आपका वातावरण। एंड अगर आपने सच में इसे सिंसियरली लेना शुरू किया तो आप में से हर एक आदमी ये संगत आपके घर में ढूंढ सकता है। जानना चाहते हो कैसे? ऐसे पूरा घर आराम से पॉजिटिव होके इसे देख रहा है, ये संगत घर में आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से पॉजिटिव बनाना शुरू कर दो। ऑलराइट, ये संगत बदलने लग जाएगी। संगत तो आपके घर में है। ऑलराइट, इसी संगत को इसी तरह से जुड़ने की आदत बना लो, इसी संगत को इसी तरह से जुड़ने की आदत बना लो। एंड जब संगत और आदत जुड़ेगी तो धीरे धीरे आप देखो अपने आप चेहरों पे स्माइल होगी। छोटे छोटे बच्चे घरों के देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों के सेशंस अटेंड कर रहे हैं, और आज से अगर आपके छोटे बच्चे के कानों में ये सब चीजें पड़ती है तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप में से हर किसी की दुनिया बदल रही है। आप सेशन देख रहे हो, बच्चे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ये सुन रहे हैं रादर देन टीवी चल रहा है, फिल्मी गाने चल रहे हैं और कुछ चल रहा है, दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग 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 डिफरेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, अब बड़ा सोच रहा है इंडिया। ओह माय गॉड, दोनों बच्चे नोट्स बना रहे हैं। आई थॉट दे आर स्टडिंग, लेकिन दोनों बच्चे नोट्स बना रहे हैं। दैट्स सो नाइस। दोस्तों, अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बदल रहा है इंडिया, अब लॉलीपॉप खा रहा है इंडिया। लुक एट दिस, ऑलराइट, अब बड़ा सोच रहा है इंडिया मेरे दोस्तों, अब अलग हो रही है जिंदगी। ओके, everything is going to change in this country and I am going to change it, you are going to change it, आपकी फैमिली के ये बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं, they are going to change it, and हम में से हर एक इंसान जब मिलेगा, we will be changing the whole country. Look at this guys, look at this, what is happening, look at this, what is happening. कोई खाते हुए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को देख रहा है, कोई लिखते हुए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को देख रहा है, कोई
6 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, लेकिन एवरीवन इज एंजॉयिंग। एंड दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान इस चीज को समझ ले कि संगत आदत गुरु अगर हमारे घर के अंदर हो तो वी कैन डू एनीथिंग 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 एंड वी कैन चेंज बिग टाइम। We can become a change. Let's become a change. महात्मा गांधी कहते थे, let's become a change which you want to see in the world. And मैं चाहता हूं आप में से हर एक आदमी दादी जी के लिए एक बार तालियां बजा दे, दैट वो बहुत शांति से इस सेशन को इतनी देर से देख रही हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। नमस्कार दादी जी, अनकंफर्टेबल मत होइए, आप जैसे घर में हैं वैसे रहिए, एंड यू एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग इट। ओके, सो लवली, थैंक यू सो मच। हाय बेटा, हाउ आर यू डूइंग? गुड 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 गुड। सो दोस्तों, उत्सव बनाना है इसे, ऑलराइट, इसे ही उत्सव बनाना है और कुछ नहीं है। यू नो, धीरे 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 आप में से हर एक आदमी बदलने लग जाएगा। बस सबसे पहली चीज इंप्लीमेंट ये करना है कि एक अच्छी संगत में रहना है, अच्छी आदतें डेवलप करना है, उसके लिए माइंड की स्टेट जबरदस्त होनी है। एक टीचर किसी भी फील्ड में आप मास्टरी करने के लिए जरूरी है आपको। एंड यू नो व्हाट, गीता एक ऐसी पुस्तक है जो आपको जीना सिखा सकती है, लेकिन हम पढ़ते कब हैं? जीवन के अंत में। ओके, और यही हम सबका प्रॉब्लम है। लाइफ इंप्रूवमेंट कब करेंगे? जिंदगी में करेंगे, लास्ट में करेंगे। लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए तो दुनिया पड़ी है, अरे अभी करने की जरूरत नहीं है लाइफ इंप्रूवमेंट। लाइफ इंप्रूवमेंट करेंगे, आराम से करेंगे माय डियर फ्रेंड। प्रॉब्लम ये है हम सब की, हम कहते हैं कि यार अपने माइंड को डेवलप कब करेंगे? कल करेंगे। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। इस फिलॉसफी में हम में से कईयों की जिंदगी चल रही है। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 8:15 बजे से आप लोगों को एक ऐसी मेडिटेशन करवाऊं जिसमें EFT से लेके जितनी भी चीजें आपने सीखी है सभी कुछ उसी में रहे, ताकि एक सिंपल कैप्सूल मिल जाए आपको। एंड वो सिंपल कैप्सूल आप में से हर एक आदमी रोज कर सके। उसे हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे हमारे जूम में, एंड वो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ताकि आप में से हर एक आदमी उसे घर परिवार के साथ कर सके, ताकि आप अफर्मेशंस भी उसी में कर लें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी उसी में कर लें, ब्लेसिंग भी दुनिया में उस दुनिया को उसी से दे दें, शांति साइलेंस भी उसी में आ जाए, काफी सारी चीजें, वन कैप्सूल जो कि काफी सारी चीजें आपकी लाइन अप कर दे। इसीलिए आई विल कम टू द पॉइंट। देखिए, आज मैं दो चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आज आपको एक ऐसा मंत्र देना चाह रहा हूं जो आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स जो आपके पास आएंगी उनको तुरंत छू मंतर कर देगा। ओके, छू मंतर कर देगा, लेकिन अगर आपने उसे ठीक से इंप्लीमेंट किया और आपने उसमें बिलीव किया तो। लेकिन उसके पहले एक बार दोस्तों, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, एंड यस यस, ऑलराइट, गुड। एक बार फिर से, कौन 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 कौन, एक बार फिर से, एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से दादी जी के साथ करेंगे, शेक योर बॉडी, यस, हाउ वंडरफुल, लवली। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग बदल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल। दोस्तों, मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके अंदर छोटा सा परिवर्तन लाने का एक जरिया बन सकूं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है, एंड इस सौभाग्य को, इस सेवा का मौका देने के लिए आप लोगों को जितनी बार दिल से थैंक यू बोलूं वो उतना कम है, उतना कम है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों, लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग लेट गो नहीं करते, लेट गो नहीं करते। यू नो, एक छोटी सी कहानी है जो आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, अलग अलग तरीके से सुनी होगी। कहानी ऐसी है कि एक राजा था, एंड राजा के राज्य में एक रूल था कि उस राज्य में कोई भी इंसान बाहर से आएगा तो उसको सबसे पहले राज दरबार में जाना होगा, राजा को प्रणाम करना होगा, एंड उसके बाद ही वो उस राज्य में कुछ दिन गुजार सकता है। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़े पहुंचे हुए मंक राजा के राज्य में आए, एंड उन्होंने नदी के पास एक जंगल में छोटी सी कुटिया बना के रहना शुरू किया। एंड धीरे धीरे काफी दिन हो गए थे उनको रहते हुए, और राजा तक खबर पहुंची कि एक मंक आया बाहर से, और राजा आग बगुला हो गया, क्योंकि मंक आके राजा का परमिशन नहीं लिया मंक ने। और जब मंक ने राजा का परमिशन नहीं लिया, राजा ने कहा मेरे राज्य का रूल किसने तोड़ा, ये तो हो नहीं सकता, मेरा परमिशन नहीं लिया, ओ माय गॉड, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पे सवार होके उस मॉनेस्ट्री की तरफ गया। मॉनेस्ट्री के बाहर पहुंचा तो उनका एक जूनियर मंक वहां गेट पे था। बोले राजा आया है यहाँ पे, ओके, आपके चीफ मंक को बुलाया जाए। सॉरी गाइस,
बोले नहीं, हमारे चीफ मंक तो मेडिटेशन में है। क्या बात है, उनको बोलो राजा आया है यहाँ का। नहीं नहीं, वो मेडिटेशन में है, नहीं जाने दे सकता। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उस मंक को मारा या साइड हटाया और सीधा उस कक्ष की तरफ जा बढ़े जहां पे कि सीनियर मंक मेडिटेशन कर रहे थे। सीनियर मंक की मेडिटेशन चल रही थी और राजा अचानक से, मैं राजा हूं यहाँ का, आई वांट टू मीट यू। तो मंक ने आंखें खोली, राजन अंदर आ जाइए। बड़ी शांति से, बड़ी पोलाइटनेस के लिए राजा के लिए गद्दा लगा हुआ था सामने, आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, ये बताइए आप, मेरे राज्य का रूल आपने कैसे तोड़ा, आपको आना चाहिए था, ये वो बहुत सारी चीजें। राजन शांत हो जाइए और बैठिए। लेकिन राजा तो शांति नहीं हो रहा। नहीं नहीं राजन शांत हो जाइए। और फिर थोड़ी देर बाद राजा शांत हुआ। राजा को लगा मंक थोड़ा बुद्धिमान दिख रहा है, इसके चेहरे पे कोई क्रोध नहीं है। मंक ने कहा, राजन क्या लेंगे, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। ओके। चाय का एक प्याला आया। ओके। एक केटली आई जिसमें चाय थी, कप था, और मंक ने चाय के कप में चाय डालना शुरू किया और ट्रे थी नीचे, चाय डाल रहे थे और राजा चाय को डालते हुए देख रहा था। इतने में कप फुल हो गया, लेकिन मंक फिर भी चाय डाले जा रहे थे। चाय कप के बाहर, राजा कहे, अरे चाय गिर रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मंक फिर भी स्माइल के साथ चाय डाले जा रहे थे। अरे चाय गिर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा? मंक फिर भी चाय डाले जा रहे थे। एंड मंक डाले जा रहे थे, चाय चाय गिरती जा रही थी। राजा कहे, आर यू मैड, अच्छा हुआ तू मुझसे मिलने नहीं आया। राजा जाने लगा। मंक ने कहा, वेट ऑलराइट, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। ये चाय बाहर क्यों आई? अरे बाहर क्यों आई? आपने कप भर दिया तो चाय बाहर ही झलकेगी ना। नहीं, लेकिन फिर भी चाय बाहर क्यों आई? क्योंकि कप पहले से भरा हुआ था। राजा, मैंने आपसे कोई भी बात इसलिए नहीं की या आपके राज्य में आपसे दर्शन लेने या आपसे कोई बात करने इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पहले से ही अहंकार से भरे हुए हो, और जब अहंकार से कोई आदमी भरा हुआ है उसके अंदर दूसरी ज्ञान की बात कैसे जा सकती है। और जैसे ही राजा को समझ में आया ये, राजा कदमों में लेट गया। दोस्तों, हम और आप कहीं ना कहीं भरे हुए हैं, प्रेजुडिस्ड माइंड है हमारा हर चीज के लिए। ये आदमी अच्छा होगा, ये ऐसे कपड़े पहनता मतलब ये ठीक है, ये वैसे कपड़े पहनता मतलब वो राइट है, वो रॉन्ग है, वो ऐसे बिहेव करता है तो ओ माय गॉड कैसे हो रहा है, ये क्या है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा, वी आर प्रेजुडिस्ड एवरी सिंगल मिनट, हर मोमेंट। और पास्ट में किसी ने, मैंने अगर आपसे किसी भी चीज को लेके झगड़ा कर दिया आप भर गए, एंड उसके बाद जिंदगी भर आपने सोचा ये तो बुरा आदमी है, एंड आप मुझसे नफरत करने लगे। दोस्तों, ये ही हो रहा है, हम लोग लेट गो नहीं कर रहे हैं। ओके, पास्ट में कुछ बुरा हो गया उसको पकड़ के रख रहे हैं। कल भी मैंने कहा, वी आर होल्डिंग इट टू टाइटली, वी नीड टू होल्ड इट लाइटली। तो दोस्तों, अब हमें प्रॉब्लम है। कल आपने देखा, आपको क्या होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन से डील करना आना चाहिए, रिजेक्शन से डील करना आना चाहिए, फाइनेंशियल प्रेशर से डील करना आना चाहिए, फियर से डील करना आना चाहिए, और आपकी सफलता से डील करना आना चाहिए। ये 5 चीजों से डील करना सीख गए तो आप सफल हो गए। बट द प्रॉब्लम इज, इन 5 चीजों से डील करना हम सीख ही नहीं पाते। ओह मैं तो फेलियर हो गया, ओ मैं फेलियर हो गया, ओ मैं फेलियर हो गया, मैं फेल हो गया, ओ मेरा बेटा फेल हो गया, मेरा बेटा फेल हो गया, मैं फेल हो गया। एक बच्चा कई बार छोटे से फेलियर के कारण आजकल नेगेटिव रास्ते पर चला जाता है। और कई बार तो कई बच्चे इंजीनियरिंग या किसी एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद आपको पता है सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू लेट गो। मैं कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे छूट जाऊं, ऑलराइट, इट्स नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट लेटिंग गो। सो दोस्तों, वी नीड टू लर्न लेटिंग गो। लेकिन ये लेट गो करने के लिए पहली चीज, एक तो जब मुसीबत आई, लेट मी आस्क यू दिस, कुछ सवाल आप लोगों से। और ये सवाल आज सुबह मैंने कमांडो ट्रेनिंग में मेरे पूछे, सुबह 5 बजे से 7 बजे। सवाल ये है, आप इस समय ये क्यों अटेंड कर रहे हैं? सवाल ये है कि देयर आर नो, क्या ये मोमेंट ऑर्डिनरी है? सवाल ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आपको किसने दी? सवाल ये है कि आपको जैसी बॉडी दी है वो किसने दी? आपको औरत बनाया या आदमी बनाया या कुछ भी बनाया, वो क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया? आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में पैदा किया गया तो क्यों? आप अगर राजस्थान में है तो राजस्थान में क्यों? आप मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में क्यों? आप जिस घर में पैदा हुए उसी घर में क्यों पैदा हुए? आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्यों है? किसी के घर में कैंसर है तो क्यों है? किसी के घर में कोर्ट केस है तो क्यों है? किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा संपत्ति है तो क्यों है? कोई बहुत बच्चा जब पैदा होता है तो किसको, क्यों कोई आदमी बहुत धनी आदमी के घर में पैदा हो रहा है और क्यों कोई आदमी बहुत निर्धन के घर में पैदा हो रहा है? क्यों कोई झुग्गी झोपड़ी में है? क्यों किसी को कहीं खाना नहीं मिल रहा? और क्यों किसी के पास इतना खाने के लिए है कि वो समझ नहीं पाता कौन सा आज खाऊं?
क्यों कोई आदमी एक एक रात में करोड़ों खर्च कर देता है और कोई आदमी जिंदगी भर में कभी करोड़ों नहीं देख पाता? क्या रीजन है इन चीजों के लिए? थोड़ी देर के लिए सोचिए। लाखों करोड़ों लोगों में से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है कि आप इसे देख रहे हैं? सोच के देखिए क्यों। इन क्यों का आंसर आप कहेंगे सर मेरे पास नहीं है। ऑलराइट, आई नो आपके पास नहीं है। ओके, क्यों कोई आदमी कोरोना से मर गया, कोई आदमी को कोरोना हुआ वो ठीक हो गया, किसी को कोरोना हुआ और वो कह रहा है कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं हुआ मुझे तो कोरोना होने के बाद। आप फालतू में डर रहे हो। क्या है रीजन? क्या रीजन है कि किसी की छोटी सी घर में ही गिर के डेथ हो गई और कोई बहुत बड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया? क्या रीजन है? ये सब चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये आपको मिल रही है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हरियाली, ये पानी, ये नदियां, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? किसी जगह रेगिस्तान है, किसी जगह बहुत पत्थर हैं और किसी जगह बहुत मिट्टी है और किसी जगह बहुत सारे घने जंगल हैं। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? किसी जगह बहुत ठंड है, किसी जगह बहुत प्रॉब्लम्स है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, कोई तो शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है। बस ये ही मैं कहना चाहूंगा। आपको ये प्रोग्राम देखने का थॉट आया, ये किसने दिया? ये प्रोग्राम देखने के बाद भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रोग्राम देखेंगे और बोलेंगे ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, छोड़ो इसको। आ जाएगा कोई उड़ता उड़ता यूट्यूब से अचानक से आने के बाद आदमी बोलेगा अरे यार ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता। ओके, सो हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस? आप कहेंगे सर कोई तो है शक्ति। तो वो शक्ति क्या है दोस्तों, उसको समझिए। देयर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग इट, राइट? कोई तो है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो किसने दी है? कहीं ना कहीं उसकी है। ऑलराइट, अब अगर उसकी है तो टेंशन किसको लेनी है? उसको ही लेनी है। तो मंत्र दे रहा हूं जो कि मैंने हैप्पी थॉट्स में सीखा था, बहुत पहले सीखा था, एंड जिसने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मिरेकल किया है, और वो मंत्र है लेट हिम सी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके, मैं अपने आप को एक ही चीज कहता हूं, अब क्या होने वाला है, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, आई डोंट नो, लेट हिम सी। मैं तो चद्दर तान के सो रहा हूं, आई डोंट केयर। आप कहोगे सर टेंशन तो होती है ना? हाँ होती है, सबको होती है टेंशन, लेकिन लेट हिम सी। अब टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, टेंशन ही टेंशन है, लेकिन अब मैं टेंशन लेके करूं क्या? लेट हिम सी। ओके, अब आगे क्या होगा? मैं मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, तब मैंने देखा ओ माय गॉड अब क्या होगा, एंड फिर मंत्र याद आया, लेट हिम सी, सो जाओ देखा जाएगा क्या होगा कल। तो अब अच्छा अभी अपन ट्रेनिंग में है ना, लेट्स डू द ट्रेनिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी लेट हिम सी। इस मोमेंट में अगर आपको कोई भी तकलीफ है, शांति से जियो तो सही। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि हम सब लोगों से फीडबैक शेयर कर रहे हैं, सर इससे मेरी जिंदगी बदल गई, सर ये हो गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। थोड़े दिन पहले तक आप सोच रहे थे ये प्रॉब्लम कभी ओवर ही नहीं होगी, और अब आप में से कई लोग कह रहे हैं सर मिरेकल हो गया मेरे साथ। कल एक लड़के ने मैसेज भेजा, सर काफी दिनों से मैं सोच रहा था आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, ऑलराइट, लेकिन आपने सवाल का जवाब दिया, मिरेकल हो गया। सर मेरा लैपटॉप काम करना बंद कर दिया था और मैं देख रहा था कैसे काम करेगा, और मैं बड़ा चिंतित था क्योंकि मेरा काफी डेटा उसमें था, एंड पता नहीं सर मैंने 2 बार बोला डिवाइन डिवाइन डिवाइन, एंड इट ऑन हो गया। दोस्तों आप कहोगे ये डिवाइन बोलने से क्या मैजिक हो रहा है? मैं कहूंगा शायद नहीं हो रहा, लेकिन इससे ये हो रहा है कि आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है। ऑलराइट, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल, तो आपको मिरेकल दिखाई देंगे। इस कमरे में, आपके कमरे में जहां आप बैठे, अभी मैं आपको बोलूं ओके रेड कलर देखिए, जहां पे भी रेड कलर है, रेड कलर है, रेड कलर, देखिए देखिए देखिए, आप क्या देख रहे हैं? कॉन्शियसली क्या ढूंढ रहे हैं? रेड कलर। अभी थोड़ी देर में ओके ब्लू कलर देखने की कोशिश कीजिए, जो पूरे कमरे में जहां जहां ब्लू कलर है देखने की कोशिश कीजिए। आपने ब्लू कलर देखा, रेड कलर देखा तो रेड दिखाई दिया, ब्लू दिखा तो ब्लू दिखाई दिया। चश्मा बदलोगे तो दुनिया जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दिखेगी, ग्रीन चश्मा पहनोगे तो ग्रीन दिखेगी, रेड चश्मा पहनोगे तो रेड दिखेगी। एंड ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पॉसिबिलिटीज में जीना आ जाता है। सो मैं कहता हूं प्रॉब्लम है, लेट हिम सी। बहुत अच्छा है, आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, आगे क्या होगा और अच्छा होगा क्या? लेट हिम सी। लेट्स बी इन प्रेजेंट। आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन दोस्तों आप में से हर एक आदमी ने, जब से आप मेरे साथ हैं, यू आर बीइंग इन प्रेजेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स द मैजिक। चलिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू। सो मंत्र क्या है? लेट हिम सी। जैसे हाउ वंडरफुल है ना, लेट हिम सी। झगड़ा हो गया घर वालों से, आपको किसी लड़के से शादी करनी है, किसी लड़की से शादी करनी है, घर वाले नहीं मान रहे, ओके, और आप सब कुछ करके हार गए, थक गए, अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, लेट हिम सी। आपका बिजनेस कोरोना के कारण ठप हो गया, आपने जितने ज्यादा मेहनत करनी थी सब करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा, लेट हिम सी। ओके, अब आपके हाथ की बात ही नहीं है,
मेरे हाथ में है 24 घंटे, उन 24 घंटों का मैं बेस्ट यूटिलाइज कर लिया और उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेट हिम सी, let him see. LMC is the mantra. Let him see, let him see, let him see. And let me tell you, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पूरी की पूरी प्रेशर किसको दे रहे हो, ऊपर वाले को। एंड आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आपके माइंड में थॉट वो दे रहा है, आपको सोल्यूशन भी वो दे सकता है, आपको सारी की सारी ब्यूटीफुल चीजें भी वो दे सकता है। How many of you agree to this, everybody? How wonderful. I'm reading some of your best comments, everybody. सर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत परेशान रहती है क्योंकि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो लड़का मुस्लिम है। और गाइज ये हिंदू मुस्लिम के मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन खुद हिंदू है, शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों की फैमिली नहीं मान रही है। एनीवेज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, कास्टिज्म तो राजस्थान में सब जगह है। राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया में है, यूपी में है, बिहार में है, सभी जगह है दोस्तों। ओके, ब्राह्मण जैन से शादी नहीं कर सकते, जैन राजपूत से नहीं कर सकते, ये सब है दोस्तों। आई डोंट नो ओके हाउ यू डील। मैं एक ही चीज कहता हूँ, लेट हिम सी, लेट हिम सी। अगर आप कुछ कर सकते हैं और आपको लगता है, मैं एक ही चीज कहूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके पेरेंट्स को एक बार कुछ भी स्टेप लेने से पहले सामने रखिएगा उनका चेहरा। आपने तो जोश जोश में जवानी में कदम उठा लिया, लेकिन उनका आगे का लाइफ और उनका पीछे का लाइफ पहले देखते हुए फिर कदम उठाइएगा, इतना मैं कहूंगा, और आप खुद ये वाइज विजडम के साथ कॉल ले पाएंगे। खैर दोस्तों, सो मंत्रा है लेट हिम सी। अब आज मैं आपको सिखाने वाला था सेडोना मेथड। तो सेडोना मेथड है क्विक रिलीज मेथड। आपके माइंड में, हार्ट में प्रॉब्लम्स है, थकावट है, टेंशन्स है, चैलेंजेस है, और आप उसको रिलीज करना चाहते हो। कौन सी मेथड है? सेडोना मेथड। सेडोना मेथड क्या होता है समझते हैं। सेडोना मेथड है यानी 3 सवालों की मेथड है। मान लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड आपको डर लग रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो थोड़ी सी देर के लिए शांत बैठे और अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या प्रॉब्लम है? कॉन्फिडेंस कम है। तो ये सेडोना मेथड के पीछे का बिलीफ सिस्टम कहता है, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर है इस क्षण। ओके, जो भी मुझे चाहिए। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मुझे एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनने के लिए अलाउ कर सकता हूं? कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपर कॉन्फिडेंट? पहला सवाल है कुड, या फिर क्या मैं अपने आप को अलाउ कर सकता हूं कॉन्फिडेंट बनने के लिए? एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछेंगे उस समय, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपर कॉन्फिडेंट? अंदर से एक ही आवाज आएगी, यस। अगर अंदर से आवाज आए यस, तो दूसरा सवाल, एंड दूसरा सवाल है वुड, क्या मैं सच में अपने आप को कॉन्फिडेंट बनने के लिए अलाउ करूंगा? एंड अंदर से फिर से आवाज आएगी यस। अगर दोनों सवालों का उत्तर यस आए तो तीसरा सवाल पूछिए, और सेडोना मेथड कंप्लीटेड। एंड तीसरा सवाल है, could I allow myself to be super confident? Yes. Would I allow myself to be super confident? Yes. And तीसरा सवाल है when, और जैसे ही आप बोलोगे कब, अंदर से आवाज आएगी now, यानी अब। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूं और दिन भर थकावट रहती है, कभी बाहर गए हो, दिन भर में आप सोए नहीं हो रात को, या कई सारे चैलेंजेस है और ऊर्जा आ नहीं रही है। जैसे आज ऐसा हुआ, कल रात को मैं 1 बजे सोया, कल का दिन काफी स्ट्रेसफुल था, बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़ा, फिर आपका सेशन था, उसके बाद मेडिटेशन था, उसके बाद बहुत सारे मीटिंग्स थे, ऑफिस का मीटिंग था। 1 बजे सोया, सुबह 4:30 बजे उठा, कमांडो ट्रेनिंग किया, कमांडो ट्रेनिंग के बाद सुबह 7:30 बजे निकला, 50-60 किलोमीटर मुझे गाड़ी चला के कहीं जाना था, वहां से फिर आज दिन भर मेरा ट्रैवल रहा। एंड ये सेशन शुरू होने के थोड़ी सी देर पहले, 5-7 मिनट पहले मैं यहाँ पहुंच पाया, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, एग्जॉस्टेड। अंदर से मैंने कहा, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपर एनर्जेटिक टुडे? अंदर से आवाज आई यस। वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपर कॉन्फिडेंट टुडे? यस। व्हेन, नाउ, एंड सेम एनर्जी ऑल द टाइम। दोस्तों, क्या मैं अपने आप को अलाउ कर सकता हूं बहुत एंथुसियाज्म में आने के लिए? यस। क्या मैं सच में अपने आप को अलाउ करूंगा अपना एंथुसियाज्म बाहर लाने के लिए? यस। व्हेन, नाउ। डर लग रहा है, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी free from fear? Yes. Would I allow myself to be free from fear? Yes. When, now. एग्जाम के पहले प्रेशर है, आपको डर लग रहा है, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने आप को अलाउ करूंगा फियर से डील करने के लिए और फियरलेस होने के लिए? यस। अंदर से यही आवाज आएगी यस। अंदर से डीप इनसाइड अगर आप बैठोगे तो अंदर से आवाज आएगी यस। दूसरा आपने सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने आप को अलाउ करूंगा? यस। व्हेन, नाउ। अगर आप बीमार हैं, अपने आप को बार बार ये पूछिए,
ओके, दिन में एटलीस्ट 1-2 बार तो कीजिए। कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू हील? यस। वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू हील? यस। व्हेन? नाउ। माई हीलिंग बिगिंस नाउ। उसके बाद आप कीजिए डिवाइन चैंट और जो भी आपको करना है। कुड, वुड एंड व्हेन, सिंपल 3 सवाल। ओके, ऐसे ही अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अपने आप से पूछिए, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सुपर क्रिएटिव? यस। क्या मैं अपने आप को बहुत क्रिएटिव होने के लिए अलाउ कर सकता हूं? अंदर से एक ही आवाज आएगी, यस। Would I allow myself to be super creative? Yes. When? Now. दोस्तों, ये इतनी पावरफुल चीजें हैं कि पूछिए मत। 2014 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा बिजनेस जीरो पे चला गया। मेरे को अपनी कंपनी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा और उस समय मैं मेरे टीचर नित्य शांति के पास गया। आई वाज सुपर सैड। मुझे लग रहा था कि मेरा तो करियर खत्म हो गया। मुझे लग रहा था अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नित्य शांति के पास गया और उनसे मैंने कहा नित्य शांति, देयर इज सो मच ऑफ एंजाइटी। वो बोलते हैं, भूपेंद्र, ऑल यू नीड इज विद इन यू नाउ। तेरे अंदर है सब कुछ, जो तुझे चाहिए तेरे अंदर है। ओके, ऑल यू नीड। मैंने कहा कैसे? बोले, एक बीज के अंदर पूरा यूनिवर्स छुपा है, पूरा जंगल छुपा है एक बीज के अंदर। ऐसे ही तेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस छुपा है। जो भी इंसान, कोई भी इंसान कर सकता है वो तू भी कर सकता है। और एक इंसान ने अगर डिसाइड कर लिया तो वो चांद पे जा पाया है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। और जो आदमी चांद पे गया उसके पास भी एक दिमाग, 2 कान, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह एंड बाकी एक हार्ट है। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलता है यस। सो ऑल यू नीड इज विद इन यू नाउ। तो उन्होंने मुझे उस समय ये सेडोना मेथड सिखाया था कि ये छोटा सा मेथड ले। जब भी एंजाइटी हो अपने आप से पूछ, क्या मैं अपने आप को इस एंजाइटी से फ्री होने के लिए अलाउ कर सकता हूं? यस। क्या मैं अपने आप को इस एंजाइटी से फ्री होने के लिए अलाउ करूंगा? यस। व्हेन? नाउ। मैं हमेशा उनको बोलता था, सर मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे को पैसा वैसा डील करना नहीं आता। उन्होंने एक ही चीज कही, कुड यू आस्क योरसेल्फ, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अ गुड बिजनेसमैन? यस। वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन? यस। व्हेन? नाउ। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम दूसरे बिजनेसमैन को देखते हैं, अरे वो तो बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, वो तो टैलेंटेड है। अरे भाई, तू कम टैलेंटेड नहीं है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, यार वो ट्रेनर तो इतना अच्छा है, वो तो ऐसा। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे को इंस्पिरेशन भी मिलती है, लेकिन कभी कभी इंस्पिरेशन के अलावा कभी कभी ये भी मिलता है, ओ माय गॉड, एंथनी रॉबिन्स जैसा तो बन ही नहीं सकेंगे इस दुनिया में, ये वो। तो अंदर से एक आवाज आती है, जो वो कर सकता है क्या मैं कर सकता हूँ? 100%। क्योंकि उसके पास कितनी बॉडी है? एक। मेरे पास कितनी है? एक। उसके पास कितना माइंड? एक। मेरे पास कितना? एक। कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी बेटर देन हिम? यस। वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी बेटर देन हिम? यस। व्हेन? नाउ। ये मोमेंट मेरा है, ये क्षण मेरा है, और इस क्षण में मुझे अपने माइंड को प्रोग्राम करना है हाईएस्ट लेवल सक्सेस के लिए। क्या मैं अपने आप को बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए अलाउ कर सकता हूं? कुड आई अलाउ माई सेल्फ? आप सभी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते, आप सभी का प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते नहीं हो कि आप कमा सकते हो। आप सोचते हो नहीं कमा पाएंगे, बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, करोड़ों कमाना बहुत मुश्किल है, ओ माय गॉड बहुत मुश्किल है। आप देखते हो पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ओ पैसे वाले तो बेकार रहते हैं, पैसा वाले कमाने वाले ये होते हैं। और बचपन में आपने कई बार अपने मम्मी पापा दादा दादी को बोला होगा, अरे मम्मा उनके पास देखो कितना पैसा, उनके पास देखो कितना पैसा है। और मम्मा पापा दादा दादी या नाना नानी में से किसी ने कहा, अरे बेटा उनके पास 2 नंबर का आता है, अपने तेरे पापा तो ईमानदार है। और कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, पैसा कमाना मुश्किल है। सच में ईमानदारी से 1 नंबर में बहुत सारा पैसा कमाना मुश्किल है, छोटा मोटा चल जाएगा। जब ये बिलीफ हमारा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो हर चीज मुश्किल हो रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, सेडोना मेथड इतना ही। सो पहला है कुड, दूसरा है वुड, तीसरा है व्हेन। अपने आप से पूछिए, कुड आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मोर मनी? यस। व्हेन? नाउ। तो अभी से, नाउ का मतलब ये नहीं है कि अभी से पैसा आने लग जाएगा। नाउ का मतलब है अब आप फोकस करने लग जाओगे उस चीज पे जिससे पैसा आता है। ओके, रादर देन फोकसिंग ऑन पैसा बहुत मुश्किल है मुश्किल है, अभी फोकस करना शुरू करो, पैसा आसान है आसान है आसान है। पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, आसान है आसान है आसान है। कैन आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर? यस। वुड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर? यस। व्हेन? नाउ। तो कुड, वुड एंड व्हेन, 3 सवाल। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं करूंगा या अलाउ करूंगा, एंड कब। ऑलराइट, सिंपल। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं करूंगा और कब करूंगा। दीज आर द 3 सिंपल वेज टू चेंज, एंड हर सिचुएशन में ये काम आएगा, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीज है। आप किसी से हर्ट हुए,
Could I allow myself to be happy? Yes. Would I allow myself to be happy? Yes. When? Now. एक काम करते हैं, क्विकली अपनी आंखें बंद कीजिए, क्विकली अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके शांति से बैठिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने आप को अलाउ कर सकते हैं हैप्पी रहने के लिए? देखिए कि अंदर से क्या आवाज आ रही है। क्या आप अपने आप को सच में हैप्पीनेस के लिए अलाउ करेंगे? यस। एंड तीसरा सवाल है कब? एंड जैसे ही कब हुआ, क्या हुआ आपके चेहरे के साथ? इंस्टेंट स्माइल आप देखेंगे। ऐसे ही कैन आई बी फ्री फ्रॉम फियर? आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या मैं डर से जीत सकता हूं? क्या अपने डर को भुला सकता हूं? यस। क्या मैं सच में डर से फ्री होना चाहूंगा या डर से मुक्त होना चाहूंगा? यस। कब? आई डोंट नो। जैसे ही मैं पूछता हूं कब, कैसे पूरी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, कैसे पूरा स्माइल चेंज हो जाता है। आई फील इट मैसिव। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे ठीक से नहीं कर पाए, इसके लिए मेडिटेशन करेंगे। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक कम से कम 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन करवाऊंगा, जिसमें आप काफी सारी चीजें मेरे साथ करेंगे। ओके, काफी सारी चीजें। EFT आपको पता है, even though this is my problem, I deeply and completely accept myself and love myself. Thank you so much, God. I really love myself. धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, धीरे धीरे और 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 अच्छा हो रहा हूँ। Am I right? हम अफर्मेशंस बोलेंगे, EFT के साथ बोलेंगे। हम लोग मेडिटेशन करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। अगर आप EFT किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से ठीक से नहीं कर पाए, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट दोस्तों, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिकॉज आई नो दैट आप में से कई लोगों ने पहली बार सेशन अटेंड किया। हो सकता है इस सेशन में कई लोग आप में से पहली बार आए हैं। ओके, बिकॉज यूट्यूब पे लाइव है, वी हैव नो कंट्रोल कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कितनी देर रुक रहा है। सो यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर अप टू यू। बट अगर आप सच में ये डिटेल में, जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं वो लोग तो काफी अच्छे से इसे कर पाएंगे। दैट्स माय बिलीफ। ओके, चलिए लेट्स गो। क्लोज योर आईज एवरीवन, आंखें बंद एंड पूरी तरह से शांत। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी एंड शांति से बैठिए। वीडियो ऑफ एंड आई एम गोइंग टू ओनली स्पीक। एक गहरी सांस लीजिए एंड मुंह के द्वारा छोड़िए। एक और गहरी सांस एंड मुंह के द्वारा छोड़िए। टेक अ डीप, फुल, refreshing breath. Am I audible? If I am, then you can definitely, team, you can give me the feedback on the chat. Great, thank you. So, दोस्तों, चेहरे पे स्माइल, रीढ़ की हड्डी सीधी। आई नो कई लोग जो आ रहे जा रहे हैं उनको मेडिटेशन करने की आदत नहीं होगी, आसपास बच्चे हैं तो मेडिटेशन शायद शांति से ना हो। सो थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए। जो भी आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी कहिए शांति से बैठना है। आज का मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है, क्योंकि आप लोगों ने काफी चीजें सीखी है, लेकिन हर चीज के लिए अलग से समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई रियली वांट यू टू डू दिस मेडिटेशन। अगले 1 मिनट थोड़ा सा साइलेंस।
लंबी और गहरी सांसें, लंबी और गहरी सांसें। पूरी तरह से शांत, लंबी और गहरी सांसें, लंबी और गहरी सांसें। एक और गहरी सांस, एक और गहरी सांस। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मेडिटेशन में चलते हैं। इमेजिन कीजिए आसमान से एक बैंगनी कलर की लाइट आ रही है। वायलेट कलर, बैंगनी कलर या फिर पर्पल कलर की लाइट आसमान से आती है, आपके सर की चोटी से होते हुए आपकी बॉडी में प्रवेश करती है। ये लाइट आपके पूरे मस्तिष्क को, आपके पूरे माइंड को हील करती है। आप धीरे धीरे हील होते जाते हैं। एंड अपनी इस हीलिंग के लिए, अपने इस माइंड को इतने सालों तक कंटिन्यूअसली काम करने के लिए बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे ये लाइट नीचे की तरफ जाती हुई आपके गर्दन में जा रही है। एंड यो ऑल द मसल्स ऑफ योर नेक, आपकी गर्दन की सारी मसल्स पूरी तरह से हील हो चुकी है। नेगेटिविटी बाहर जा रही है। अपनी गर्दन को इतने सालों तक आपका सपोर्ट करने के लिए दिल से बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये धीरे धीरे लाइट, बैंगनी कलर की लाइट जो आसमान से आ रही है, आपके दोनों भुजाओं में, आपके दोनों शोल्डर्स में जाती है, दोनों हाथों में जाती है। एंड यू कैन सी दैट धीरे धीरे आपके दोनों हाथ और भी ज्यादा मजबूत, नेगेटिव ऊर्जा से फ्री, एंड दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन एंड ये हीलिंग, ये पॉजिटिव ऊर्जा आपके हृदय की तरफ जाती है, आपकी अपर बैक, आपकी चेस्ट में जाती है। आप देख सकते हैं कि आप प्योर पॉजिटिव ऊर्जा से भर उठे हैं। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, चेहरे पे स्माइल करते हुए इसे फील कीजिए। यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर गेटिंग हील्ड। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, ये आप पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पेट की तरफ, आपकी लोअर बैक की तरफ जाती है। एंड आपका पेट और उसके आसपास के सारे ऑर्गन्स, आपकी किडनीज, आपके लंग्स, इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी पूरी तरह से क्लीन होती है, पॉजिटिव होती है। मन ही मन अपने हृदय को, अपने लंग्स को, सभी ऑर्गन्स को बोलिए थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपके पाँव की तरफ जाते हुए और आपकी कमर से नीचे का पूरा हिस्सा नेगेटिविटी से मुक्त हो चुका है, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। आपके दोनों पैरों में ऊर्जा भरपूर है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार। धीरे धीरे फील गुड, चेहरे पे स्माइल, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो चुकी है, नेगेटिविटी से मुक्त हो चुकी है। मन ही मन अपने पापा मम्मी, अपने गुरुजनों को, अपने देवताओं को, अपने भगवान को, सभी को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भगवान
मुझे इस दुनिया में अच्छाई का एक जरिया बना दे, एक पॉजिटिव ऊर्जा का जरिया बना दे। एंड इमेजिन कीजिए कि वो सभी लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं एंड आप इस ब्रह्मांड में अच्छाई का एक जरिया बन चुके हो। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। दोस्तों, बचपन से आज तक का कोई भी एक प्यारा सा इंसिडेंट जिसमें आप बहुत खुश थे, याद कीजिए। ये कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपको कोई गिफ्ट मिला, आप कहीं गए, आपके घर में कोई उत्सव था, एंड पूरा ध्यान अपने हृदय पे ले जाइए एंड जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरे इंसिडेंट को जीते हुए देखिए कि आपके हृदय में एक छोटी सी हलचल। एक गहरी सांस लीजिए, अपना ध्यान अपने सर की चोटी पे ले जाइए एंड एक और इंसिडेंट को याद कीजिए। एक गहरी सांस एंड मुंह के द्वारा छोड़ते हुए एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हनुमान जी की तरह आप फैलते जा रहे हैं, आसमान में जा चुके हैं। पूरी पृथ्वी आपके सामने एक छोटे से फुटबॉल के रूप में है। दोनों हाथ आशीर्वाद देने की पोजीशन में उठाइए एंड इमेजिन कीजिए कि आपके दोनों हाथों से एक बैंगनी कलर की ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी की तरफ जाती है। धरती माँ मुस्कुरा रही है एंड आपका धन्यवाद कर रही है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं एंड धरती माँ को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों हाथों से ये ऊर्जा निकलती है, ये हीलिंग ऊर्जा है, हर एक इंसान को हील कर रही है। अपने मन में कुछ अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, मेरे साथ बोलिएगा। इनफैक्ट मन में नहीं, आप बोल भी सकते हैं। ये धरती स्वर्ग है एंड मैं इसे और भी ज्यादा अच्छा बना रहा हूं। ये धरती स्वर्ग है और मैं इसे और भी अच्छा बनने में योगदान कर रहा हूं या कर रही हूं। I am getting better and better and everyone is getting better and better. मैं भी हर क्षण बेहतर बनता जा रहा हूं। इस पृथ्वी का हर एक इंसान हर क्षण बेहतर बनता जा रहा है। आपके दोनों हाथों से ये ऊर्जा निकलती है, पूरी पृथ्वी में जाती है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए एंड आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पे हरियाली बढ़ रही है। पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। लोग पहले से ज्यादा सुखी, तंदुरुस्त, खुश, हंस रहे हैं। शांति, अमन, चैन, भाईचारा, प्रेम, हर जगह ये ही दिखाई दे रहा है। और जब आप बहुत आकार में बड़े हैं, पृथ्वी आपके सामने छोटे से फुटबॉल के रूप में है, आपके दोनों हाथों से ये जो ऊर्जा है, इसके कारण पूरी पृथ्वी एक बैंगनी से कलर से ढक चुकी है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां। ये सब देखते हुए आपके मुंह से अनायास ही निकलने लगता है, डिवाइन 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 डिवाइन
divine, divine. I give you my love, I give you my heart, and I receive your love, and I receive your heart. I give you my love, I give you my heart, and I receive your love, and I receive your heart. Divine, 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 divine. Together divine, 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 together divine. Divine order be, divine count now. Divine order be, divine count now. Divine order be, divine count now. Divine bring on, divine find now. Divine, 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 divine. Divine bring gold, divine count now, divine order be, divine order now, divine order now, divine heal now, divine reach now, divine feel now, divine turn on, divine be now, divine, divine, divine. दोस्तों धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आपकी ये खुशी, ये डिविनिटी आपको हवा में महसूस हो रही है, आपके दोनों हाथों से ये ऊर्जा निकलती जा रही है, लोग हील हो रहे हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं. हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल. मन ही मन धन्यवाद दीजिए अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, जिस घर में आप रहते हैं उसका, जो ऑक्सीजन आप लेते हैं उसका, जिस धरती पे आप चलते हैं, जिस धरती पे आप कदम रहते हैं, सभी चीजों का धन्यवाद. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे रख सकते हैं. आंखें बंद रखते हुए इमेजिन कीजिए कि आपके सर की चोटी के ऊपर एक चमकता हुआ सितारा है, गोल्डन कलर का सितारा. फोकस ऑन दैट. इस गोल्डन सितारे पे फोकस कीजिए. एंड 3 बार हम ओम का चांट करेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ. मुंह के द्वारा छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें. आइए ओम का चांटिंग शुरू करते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. अगले 1 से 1.5 मिनट पूरी तरह से शांत बैठे, मेडिटेशन करें.
मन ही मन अपने एक लक्ष्य को याद कीजिए, कोई भी एक गोल, छोटा गोल, बड़ा गोल जो आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। घर खरीदने से लेके अपने बिजनेस को बढ़ाना, विदेश घूमना, जो भी आपका गोल हो, लोगों की सेवा करना। इस गोल को याद करते समय चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए एंड इमेजिन कीजिए कि ये गोल आपका अचीव हो चुका है। विजुअलाइजेशन भी हम इसी मेडिटेशन के साथ कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि ये गोल आपका पूरी तरह से अचीव हो चुका है। उस समय जब ये गोल अचीव हो जाएगा, कैसा महसूस होगा आपको, उसी तरह का फीलिंग इस क्षण आपकी बॉडी में लाइए। फील इट राइट नाउ, फील इट राइट नाउ। गोल अचीव हो चुका है, उसके बाद लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग कैसे आपको बधाई दे रहे हैं, लोग आपसे कैसे गले मिल रहे हैं, उस क्षण आपके घर वालों का फीलिंग कैसा है, वो सभी चीजें देखने की कोशिश कीजिए। आपका गोल अचीव हो चुका है, उसके बाद की जिंदगी कैसी है उसे देखने की कोशिश करें अपने माइंड में, और वो फीलिंग लाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग के ऊपर काम करता है। वॉट एवर यू वोकलाइज, विजुअलाइज, इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। जो भी आप बोलते हैं, सोचते हैं एंड महसूस करते हैं, वो बार बार आप अपनी जिंदगी में लाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है और जोश के साथ कहिए, याहू, यस, यू डिड इट, हाउ लवली। EFT की टैपिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2 उंगलियां लीजिए, सर की चोटी पे टैप करना शुरू कीजिए और बोलिए, यस, मेरे सभी गोल पूरे हो चुके हैं, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। EFT की दोनों उंगलियों से सर के ऊपर टैप करते हुए बोलिए, आई एम सो हैप्पी। आपकी टेम्पल्स यानी आपकी कनपट्टी पे टैप करिए एंड बोलिए, आई एम सो हैप्पी, मेरे सभी गोल पूरे हो रहे हैं, आई एम अ मिरेकल मैन, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। आपकी आईब्रोज के ऊपर टैप टैप कीजिए और बोलिए, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चौथा पॉइंट, आपकी आंखों के नीचे टैप करते हुए बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास आसानी से आता है, हर बार आता है, जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा आता है। आपके नाक के नीचे और छोटे वाले नीचे वाले होठ के नीचे टैप कीजिए एंड बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आपकी कॉलर बोन पे टैप करते हुए बोलिए, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा सबसे अच्छा साथी है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरे सारे काम अपने आप होते रहते हैं, मैं तो सिर्फ ऑर्डर देता हूं और ब्रह्मांड पूरा करता है, मिरेकल्स मेरे साथ होते हैं। आपके दोनों रिब्स के पास टैप कीजिए और बोलिए, आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, मैं इस धरती पे सबसे ज्यादा लकी पर्सन हूँ, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। वापस से सर की चोटी पे टैप कीजिए, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, मेरे घर में सुख शांति है। टेम्पल्स यानी कनपट्टी पे टैप करते हुए बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है। आईब्रोज पे टैप करते हुए बोलिए, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, मैं जहां जाता हूँ वहां मुझे लाभ मिलता है। आंखों के नीचे टैप करते हुए बोलिए, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी वेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी विजडम भी इम्प्रूव हो रही है। आपके नाक के नीचे और होठ के नीचे टैप करते हुए बोलिए, आई एम अ जीनियस एंड आई अप्लाई माई विजडम, मैं जीनियस हूँ और मेरी जिंदगी में मेरी विजडम को अप्लाई करता हूँ। कॉलर बोन पे टैप कीजिए एंड बोलिए, मैं जो चाहूँ वो पाऊँ, मैं दुनिया में लाखों लोगों की सेवा कर सकता हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में प्रकाश फैला रहा हूँ, आई एम अ बिगेस्ट चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। अपनी दोनों रिब्स की तरफ टैप कीजिए और बोलिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ, हर चीज परफेक्ट है एंड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, अच्छे से इंप्रूव हो रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। दोनों हाथ ब्लेसिंग्स की पोजीशन में फिर से एक बार उठाएं एंड अब
मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को और आपके परिवार वालों को दिल से दुआएं दें। तो एक बार दोनों हाथ उठाएं एंड देखिए कि इनमें से दोनों हाथों से आपके बैंगनी ऊर्जा निकलती है एंड आपको और आपके पूरे परिवार को छूती है। आप सभी लोग बैंगनी ऊर्जा से ढके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपका फैमिली में बॉन्डिंग इंप्रूव हो रही है, प्यार ही प्यार आ रहा है। धीरे धीरे आपका सब कुछ इंप्रूव होता जा रहा है। एवरीथिंग इज इंप्रूविंग। हंसते हंसते इंप्रूव हो रहा है। उन व्यक्तियों को याद कीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। देखिए कि ये बैंगनी ऊर्जा उन्हें भी छूती है एंड आपने उन्हें पूरी तरह से फॉरगिव कर दिया है एंड उन्होंने भी आपको पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। आप दिल से उनके लिए दुआएं कीजिए कि भगवान करे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। क्योंकि दोस्तों, जो चीज आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं या मांगते हैं, वो आपकी जिंदगी में भी बार बार आती है और तेजी से आती है। इमेजिन कीजिए कि उन सभी व्यक्तियों को आपने फॉरगिव कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ पॉजिटिव प्योर ऊर्जा है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। चेहरे पे मुस्कुराहट। भगवान को याद कीजिए, मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक गहरी सांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माता पिता को याद कीजिए, उनके चरणों में बैठ जाइए, अपने आप को बैठा हुआ देखिए, उनके दोनों पांव छूते हुए मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। And so it is, and so it is, and so it is. How wonderful. धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes. You can open your eyes. How wonderful. Thank you. All right, everyone. Can you hear me? Am I audible? Am I audible? All right. All right, दोस्तों. So, thank you. आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है. And I'm sure each and every one of you had this meditation. अगर आपने ये मेडिटेशन की तो बहुत बढ़िया, नहीं की तो दोस्तों करना शुरू कीजिए। दोस्तों, इस समय मैं अपने मोबाइल पे कनेक्टेड हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप का चार्जर मैंने कहीं रख दिया, बट आई कैन जस्ट से हाउ वंडरफुल, राइट? हाउ वंडरफुल। सो आई होप यू हैड अ गुड मेडिटेशन। दोस्तों, ये मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग हम लोग एडिट करके यूट्यूब पे अलग से डाल देंगे। आप लोग YouTube पे या जहाँ पे भी हम डालें, आपका learn.askbsr.com/thethinkrich जो पेज है उस पे ये अपडेट हो जाएगा। एंड जैसे ही वहाँ अपडेट होता है, आप में से हर एक इंसान उसे देख सकता है, बार बार देख सकता है। सो ये मेडिटेशन करिए, हर रोज कीजिए। इसके 2, 3, 4 वर्जन मेरी टीम डाल देगी सो दैट यू कैन डू इट डिफरेंटली। ओके, सो जितने भी मेरे पास्ट के मेडिटेशन है, 7-8 मेडिटेशन हम आपको और दे देंगे। फॉरगिवनेस मेडिटेशन वगैरह सभी मेडिटेशंस के लिंक आपको दे देंगे। बट ये समझिए ये चीज, देखिए हम लोगों को मेडिटेशंस बोरिंग लगती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब तक आपका सबकॉन्शियस डेवलप नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ डेवलप नहीं होगी। सबकॉन्शियस ही आपकी जिंदगी को डेवलप करने का रास्ता है, और अगर सबकॉन्शियस डेवलप नहीं हुआ तो आई एम टेलिंग यू, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने के लिए पावर ऑफ इंटेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने के लिए विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने के लिए चैंटिंग, उसके लिए स्विच वर्ड्स, उसके लिए फॉरगिवनेस मेडिटेशन, उसके लिए ब्लेसिंग देना, उसके लिए अपने आप को दुआएं देना, उसके लिए ऐसे इस्तेमाल करना अपने थॉट्स को कि मिरेकल्स हो जाएं, साइलेंस में बैठना, ये सारी चीजें हमने इस मेडिटेशन में की। Okay, all these things we did in this particular meditation. Am I right? तब जब सारी चीजें इस मेडिटेशन में की तो you know what? ये मेडिटेशन, एक सिंगल मेडिटेशन से आपका काफी काम हो गया।
आई नो आप में से हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें करने के लिए अगर हम शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे तो कैसे करेंगे? ओके, सो शॉर्टकट ये था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट समय तो मिलता नहीं है कई बार कई सारी चीजें करने का। मैं 10 मिनट ग्रेटिट्यूड करूं, 20 मिनट फॉरगिवनेस अलग से करूं, 20 मिनट वो करूं, मेडिटेशन, ट्विन हार्ट, 20 मिनट में चैंटिंग करूं, फिर बीच में स्विच वर्ड बोलूं। क्यों ना सारी की सारी चीजें एक साथ कर ली जाए? यस दोस्तों, की जा सकती है डेफिनेटली। ये शॉर्टकट है, जिस दिन आपको 2 घंटा मिले उस दिन सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब आपको समय नहीं मिले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि कई बार मैं कहता था, अरे सर मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मैं 5 मिनट बैठता हूं तो मेरा माइंड इधर जाता है, मेरा माइंड इधर जाता है। और ये आप लोगों के साथ हो रहा है इस समय, राइट? तो उन्होंने एक ही चीज कही, ओके, वाओ तूने 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, ओह माय गुडनेस, वाओ कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा सर 5 ही मिनट कर पाया, आप तो 20-20 मिनट करवाते हो, आधा आधा घंटा करवाते हो। बोलता वाओ यू डिड 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट किया तो सही, उसको अप्रिशिएट तो कर, उसको रिकॉग्नाइज तो कर। आज से पहले तो तूने 5 मिनट भी नहीं किया था, तूने 5 मिनट मेडिटेशन किया, हाउ वंडरफुल। एंड बोलते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती होई सुजान। एंड धीरे धीरे उसके आगे की लाइन वो है ना, रस्सी पे बल, वो क्या कहते हैं, दयानंद जी कैन यू हेल्प? सो भूल जाता हूँ कभी कभी। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आप में से हर एक इंसान को ये चीज करनी है, बार बार करनी है और अच्छे से करनी है, ताकि आप में से हर एक आदमी समझ सके कि इसकी पावर क्या है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो चलत हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मती होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अरे वाह, ओके। रस्सी आती जाती है तो वो पत्थर पे भी निशान डाल देती है, रस्सी से पत्थर पे निशान हो जाते हैं जब बार बार आप करते हो। तो मेरे टीचर ने कहा, अरे तूने 5 मिनट किया, सो वंडरफुल सो वंडरफुल, उसको रिकॉग्नाइज तो करो। प्रॉब्लम ये है हम लोगों की, हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं तो पैदल चलता हूँ, थोड़ी सी देर में थक जाता हूँ। अरे आप पैदल चले, वाह वंडरफुल, वो कई लोग तो उठ भी नहीं पाते, ऑसम, आपने कितने किलोमीटर चला? अरे मैं आधा किलोमीटर चला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 600 मीटर कल चल लेना, 700, अप्रिशिएट। तो एक दिन मैं उनके पास एक कंप्लेन लेके बैठा, मेरी वाइफ बहुत अच्छा सितार बजाती है, तो मैं कंप्लेन लेके गया। मतलब मैं नहीं गया, मैं और मेरी वाइफ गए दोनों। तो मेरी वाइफ ने कहा, मैं बजाती हूँ लेकिन कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं 5 मिनट ही बजा। वाह तुम 5 मिनट सितार बजा सकती हो, मुझे तो 1 मिनट भी बजाना नहीं आता। एंड वी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। ऑलराइट, तो हमने कहा आपने सीखा नहीं है इसलिए आपको नहीं आता। अरे तुझे आता है सितार बजाना, 5 मिनट तूने बजाया, मतलब सो नाइस। 5 मिनट से 10 मिनट कब बजाने वाले हो? मतलब वो कहते हैं कि जो कर रहे हो पहले उसे अप्रिशिएट तो करो। ओके 5 मिनट्स ही सही अप्रिशिएट तो करो, 10 मिनट ही सही अप्रिशिएट तो करो, 15 मिनट ही सही अप्रिशिएट तो करो। हम लोग क्रिटिसाइज करने में इतना खो जाते हैं कि तारीफ करना भूल जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो इंसान क्रिटिसाइज करता है वो क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन, कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट। ओके सो दोस्तों, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, इनको बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिसेस, जहां पे कि आप कॉन्शियसली अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिसेस, ये कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिसेस अपनी जिंदगी में उतारो। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये अगर पैदा हो गई तो मैं बता रहा हूँ, फिर से हम लोग राज करेंगे हर जगह पे। एंड हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, वी आर चेंजिंग। भारत बदल रहा है, क्योंकि अब बड़ा सोच रहा है भारत, अब बड़ा सोचेगा इंडिया। एम आई राइट रॉन्ग? सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। 8:47 का समय हुआ है। आई नो आप में से हर एक इंसान इस वर्कशॉप को बहुत प्यार दे रहा है, बहुत इज्जत दे रहा है। ईएफ हमारी रिट्रीट के रजिस्ट्रेशंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का उसमें सपोर्ट करने के लिए, और जो भी यहाँ आना वाला है उन्हीं के लिए। नाउ वी डोंट हैव एनी सीट्स लेफ्ट, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक्स्ट्रा सीट्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो ओनली 45 पीपल जिनके जो रजिस्टर हो चुके हैं। सो प्लीज डोंट मेक द पेमेंट्स और एनीथिंग। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए, यू कैन टॉक टू माय टीम एंड maybe next time you can be a part. and दोस्तों दुआ कीजिए सभी लोगों के लिए। आज कोविड के समय पे ये मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप ही को नहीं, सभी को इसकी जरूरत है। जो भी आपके आसपास कोविड से पॉजिटिव है या जिसकी घर में कोई भी छोटी भी बीमारी है, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, रोज दीजिए। इट्स गोइंग टू हेल्प देम बिग टाइम, इट्स गोइंग टू हेल्प देम बिग टाइम। ऑलराइट, आज लकी विनर्स का अनाउंस नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। कल एक साथ 6 लकी विनर्स का अनाउंस करेंगे। आज 24 तारीख है ना, 25 तारीख कल है। कल 25 को, आई थिंक
23rd है आज या 24th है, आई डोंट नो. ओके, सॉरी. कल शाम को 9 बजे ओके हमारे वेबिनार के बाद एक और वेबिनार है, डिस्कवर योर विजन का वेबिनार. This is one of the most powerful webinars, and I'm not saying कि it's powerful in terms of ऊर्जा and excitement, लेकिन ये टॉपिक समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. कल शाम को ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच तो अटेंड कीजिएगा 7:30 से 9 बजे तक. वी विल वाइंड इट अप बाय 8:40 एंड 9 o'clock से 11 o'clock तक या 10:30 तक, आई थिंक 10:30 तक आप डिस्कवर योर विजन का वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू एवरीबॉडी. आज सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज नाउ माय लैपटॉप बैटरी इज डेड एंड उसी के कारण दोस्तों आई कैन नॉट प्ले द म्यूजिक, बट या माय टीम विल प्ले द म्यूजिक. सो टीम, कोई भी पावरफुल सॉन्ग ओके यू कैन पुट सो दैट जाने से पहले एक बार सेलिब्रेशन हो जाए. शेक योर बॉडी, यस. ऑलराइट एवरीवन, सॉरी फॉर टुडे, सॉरी थोड़ा सा ये 15 मिनट का जो मेरा टॉक हो रहा है ये मोबाइल पे हो रहा है, बट आई होप यू विल नॉट माइंड, क्योंकि आपके पास अब हथियार है. हथियार क्या है? हाउ वंडरफुल. जो होता है अच्छे के लिए होता है. हाउ वंडरफुल. यू आर नॉट द डूअर, लेट हिम सी क्या होता है. सो ये दोनों चीजें जो आज छोटी सी बताइए, सेडोना मेथड एंड लेट हिम सी, ये दोनों टू बी वेरी ऑनेस्ट इंस्टेंट आपको रिलीज आपके फियर से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, डिफिकल्टीज से करने में सबसे ज्यादा असरदार है. सो लेट हिम सी. चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता चिता समान है. चिंता करके अगर कोई चीज इंप्रूव नहीं कर सकते तो चिंता करने से क्या फायदा, और अगर कोई चीज इंप्रूव कर सकते हो तो चिंता करने से क्या फायदा. एम आई राइट? सो गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर. थैंक यू, बाय बाय. All right, everyone. Good night and take care. Wish you all the best. Love you. Thank you.